with another session in our fundamental physics series where we were talking about the topic of electricity and circuits. So now we have come to a point where we have covered all of our fundamental topics that are there in the NCRT, and we stand at a juncture where we are now capable of dealing with questions, and um, now we are capable of reasoning as to why any phenomenon related to electricity and circuits happens in the nature, and we are now able to explain why does that happen. So as promised, we are going to look at some questions that might come in our exams directly or indirectly, and these questions might also help us improve our reasoning. And before we jump right into the question solving, let us just have a quick recap of what we have studied in our last two classes, because the class 10th syllabus has been a little lengthy, and uh, I'd be honest, it was a little difficult for a few of you guys to understand at the first time, because these are some niche questions or niche topics that are related to only students who study science in their plus two. So let us jump right into it. So in the first class, which started with our class 10 syllabus, we came across these new drawings, these new, symbols that we were incorporating with our circuit diagrams now. Some arrows, which we have now come to know that are the direction in an electric circuit where the current flows. And we came to an understanding that this direction, the convention of this direction, which is suggested as it is going from the positive end of a battery and coming back to the negative end, which would suggest that current travels from the positive end to the negative end in a circuit. But we also came to understand that this is not the case, but exactly the opposite of this is true. Actually, there are particles known as electrons, which are the negatively charged particles, negatively charged fundamental particles in physics, which actually move in a circuit, and their motion gives us the effect of electricity. But for the sake of universality, for the sake of common understanding between all the nations and all the scientists who were researching on this at that time, they came to a common understanding that let us take the convention of the current to be from the positive end to the negative end. उस समय के साइंटिस्ट्स को जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था, तब उन्होंने ये निर्धारित कर लिया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव एंड जाता है करंट. सो दिस वाज द कन्वेंशन दैट वी लर्न. करंट जो है वो मूव करेगा आपके पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक. एंड we learned about a formal definition of current, which was that if a net charge q flows through a cross section of a conductor, मतलब जो conducting wires हैं, in time t, then the current I is said to be flowing through the cross section, and it is given by this equation of I is equal to q by t. ये हमें अब हमारे जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स मिनिमम रखे हैं, जैसे सर ने हम लोगों को उस दिन क्लास में बताया था कि रियल लाइफ से जोड़ पाना बहुत जरूरी है हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को जो भी हम पढ़ रहे हैं इस अपने एग्जाम के रिलेशन में. तो these questions have to be very aligned with the understanding of the everyday life that we go through. So just keep this in mind. एक बहुत ही छोटा सा एक इक्वेशन है which will come in handy to solve just a few questions, and कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमें मतलब एक्सप्लेन करने में भी ये इक्वेशन हेल्प करेगी. I is equal to q by t, current is equal to charge by time. फिर एक और कॉन्सेप्ट आया था कि अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये जो करंट हमारे सर्किट में है इसे मोटिवेट कौन कर रहा है, ऐसी क्या चीज है जो इसे पुश कर रही है टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो हमने ये जाना कि जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स है तो इसकी केस में इलेक्ट्रिक सोर्स जो होगा वो एक मोटिवेशन, जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्रिएट करेगा जिस कंडक्टर्स के थ्रू वो कनेक्टेड है सर्किट उस बैटरी से.
या उस इलेक्ट्रिक सोर्स से, and that motivation is called electric potential difference, and it is defined as the potential difference between 2 points in an electric current, electric circuit carrying some current, as defined as the work done to move a unit charge from one point to another. वो एक पोटेंशियल है जो बता रहा है हमें कि लिख दे रहा है भाई कि इतना काम करेंगे तब चार्ज जो है एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा. And that give these charged particles the motivation to go from point A to point B, and that is V for the charge Q, and it is given by voltage equals to work done by Q. And हमारे खुद के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये जाना कि अच्छा सीरीज वाइज चलते हैं. हमने ओम्स लॉ नाम की एक चीज सीखी थी जिसमें हम एक कंक्लूजन पे आए थे कि V इज इक्वल टू आई आर. ये जो फॉर्मूला है बस यही आप लोगों को एकदम ढंग से याद करना है. इसी फॉर्मूला से आप V का रिलेशन R के साथ निकाल सकते हैं, I के साथ निकाल सकते हैं. इसी फॉर्मूले से आप I का रिलेशन V और R के साथ निकाल सकते हैं. बस यही एक मेन चीज याद रखनी है. I इज इक्वल टू क्यू बाई टी शायद कभी पूछा जाएगा, बट इससे बहुत ही डायरेक्टली साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. मैं थोड़ा सा अपने मतलब ओल्डर टाइम्स को याद करके बोल दिया था, बट हाँ ओम्स लॉ वाला जो फॉर्मूला है ये V इज इक्वल टू आई आर, ये हमें बस याद रखना है. अगर कोई भी न्यूमेरिकल हमारे सामने आएगा इन आर यूज केस तो बस वो इसी के ऊपर होगा. फिर जल्दी से हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग ने कुछ नए सिंबल्स देखे थे अपने सर्किट में. सिंपल बैटरी जो पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक सिंगल इलेक्ट्रिक सेल की बैटरी. फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बैटरी विच विल गिव अस मोर वोल्टेज और मोर करंट डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स. अगर हम बैटरीज को पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो करंट एडअप करती जाएंगी और हमें वोल्टेज सिमिलर देगी. एंड अगर हम वो बैटरीज को सीरीज में जोड़ते हैं, एक के पीछे एक लगा देते हैं, तो उनकी वोल्टेजेस एडअप होंगी बट करंट कांस्टेंट रहेगा. So then these were the newer or a certain modified denotations of a switch, an open switch and a closed switch. फिर एक वायर जॉइंट एंड वायर जंक्शन विदाउट वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग वाली चीज हमने देखी, बट जनरली अभी हमारे सामने आया नहीं और एनसीईआरटी के स्कोप में था भी नहीं. इट वाज जस्ट ए एक्सेसिव इंफॉर्मेशन दैट आई गेव आउट हियर. इलेक्ट्रिक बल्ब जो एक फॉर्म ऑफ लोड है जो हमने जाना कि जो रेजिस्टिव टाइप के लोड्स होते हैं उन्हीं का एक स्पेशल केस ये इलेक्ट्रिक बल्ब है जो हीट के साथ लाइट भी देता है. फिर रेजिस्टेंस का सिंबल ये बना, जहां कहीं भी एक सर्किट में लोड दिखेगा वहां पे सिंबल होता है. ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकें. फिर ये एम्प मीटर एंड वोल्ट मीटर विच वर just devices that help us measure the current and voltage flowing in an electric circuit. Quickly moving on to the next guess, the only topic that we are going to stick to and the only thing that we are going to remember the only topic that we are going to stick to would be the Ohm's law. और उसका ये फॉर्मूला जो है V इज इक्वल टू आई आर, ये हम जरूर याद रखेंगे. और इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और छेड़छाड़ करके, थोड़ा और डीप डाइव करके इस फॉर्मूले से हमें ये पता चला कि जो रेजिस्टेंस का सिंबल हमें यहाँ मिला था, इस रिलेशनल साइन को हटा के जब इक्वेशन लगाया था हमने, तो ये जो R हमें मिला था ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब R सीधे सीधे डिपेंड करता है एक कंडक्टर की लेंथ पे, एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. R जो है इनवर्सली उल्टे तरीके से डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के किसी भी मटेरियल में, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में. सो द ओम्स लॉ यही था कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same. यानी कि अगर उसका ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट जो ये सेम है, अगर तो रेजिस्टेंस वाला पार्ट अगर सेम है तो V is directly proportional to I. V और I साथ साथ बढ़ते या घटते हैं.
एंड रेजिस्टेंस की एक बहुत इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी कि जब ये इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, उसकी लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो इनका भी रिलेशन वाला सिंबल हटाएंगे अगर हम, तो ये इक्वेशन यहाँ पे बनती है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इससे हमें पता चला था कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल में कितनी क्षमता है उस करंट को झेल पाने की या उसको रेजिस्ट करने की, वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। अगर लेंथ एक कंडक्टर की बढ़ा दें हम, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। ये इसको हमने ऐसे लिखना सीखा था कि अगर ऐसे देखना हो कि कौन किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एल अगर हम बढ़ाएंगे तो आर बढ़ जाएगा, एल घटाएंगे तो आर घट जाएगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो गई भाई, वो बढ़ रहा है हम भी बढ़ेंगे, वो घट रहा है हम भी घटेंगे। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी उल्टी चीज कब होती है? जब जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो ये चीज घटेगी, है ना। और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तब रेजिस्टेंस की बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। फिर हमने देखा था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये तो बड़ी कमाल की चीज है। अब यही पूरा खेल है, पूरे हमारे जो एवरीडे लाइफ में हमें जो रेजिस्टेंसेस नहीं बोलते हैं, एवरीडे लाइफ में हमें जो भी उपकरण अप्लायंसेस दिखते हैं जो बिजली पे चल रहे हैं, वो ऐसे ही किसी रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। वो हमें बाहर नहीं दिखती है क्योंकि वो उसकी इंटरनल मैकेनिज्म होती है, लेकिन अब हम किसी भी बल्ब को, किसी भी मोटर को या किसी भी अप्लायंस को खोल के अगर देखेंगे, इफ सम ऑफ यू गाइस हैव दैट क्यूरियोसिटी, यू विल फाइंड दैट इट इज आइदर मेड अप ऑफ वन सिंगल एलिमेंट, जो उसका मेन एलिमेंट होगा जो बिजली को यूज कर रहा है, या फिर इट विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ऐसी चीजें जिसमें मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं, जैसे आपके फैंस का रेगुलेटर होता है, या फिर जैसे इंडक्शन कुकटॉप है, या मिक्सर मशीन्स हो गई जो किचन में मिक्सीज होती हैं। अगर उनमें आप उनको खोल के देखेंगे तो उसमें ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेज होंगी, क्योंकि भाई वो अलग स्पीड्स पे चल सकती हैं। आप बटन प्रेस करते हैं तेज चलने लगती है, आप बटन 1 नंबर प्रेस करते हैं तो धीरे हो जाती है मोटर की स्पीड, या फिर एक फैन में 5 डिफरेंट आपको स्पीड ऑप्शंस मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेज होती हैं। और ऐसे ही जैसे वो बटन हम प्रेस करते हैं तो एक कांटेक्ट पॉइंट से शिफ्ट होके इनको ऐसे जोड़ देती हैं, या फिर लास्ट वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है। सो एक ही इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में एक ही फंडामेंटल प्रॉब्लम हम ये सीखते हैं सॉल्व करना, कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ अगर डिफरेंट अप्लायंसेज या डिफरेंट लोड्स हमारे पास आएंगे तो उन्हें हम सिंप्लीफाई करके एक सिंगल इक्विवेलेंट लोड पे कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा था कि इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखने वाली चीज, जैसे बैटरीज में पैरेलल सीरीज था, वैसे ही रेजिस्टेंसेस में है। सो अब हमने इनको अगर अलग अलग से पढ़ा था तो हमें ये लिखा था कि इन डिफरेंट रेजिस्टेंसेस जो है R1 R2 एंड R3, इनको अगर हम इक्विवेलेंट एक से रिप्लेस करना चाहें, जब वो सीरीज में जुड़े होंगे, लिनियरली आगे पीछे जुड़े होंगे, तो वी विल जस्ट राइट कि आर equivalent simplified resistance of all three would be R1 plus R2 plus R3 सीरीज। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है ये जनरली हम आप लोग अपने घरों में नहीं देखेंगे। ये छोटे डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इसमें हम कंट्रोल बहुत कर रहे होते हैं चीजों का। हर रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही होती है, उसके अलग अलग यूजेस हैं जो हम अपने घरों में तो नहीं देखते हैं। लेकिन इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हम अपने घरों में देखते हैं। हमारे आपके घरों में जितनी भी लाइट्स, फैंस, अप्लायंसेस, मिक्सर्स, प्रेस, जितने भी आउटलेट्स बने हुए हैं, जितनी भी लगी हुई मशीन्स, उन सबका जो सॉकेट होता है जहां से उनमें बिजली आती है, वो सारे आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ऐसा करना क्यों जरूरी था? क्योंकि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, कमर्शियली जितने भी डिवाइसेस इंडिया में बनते हैं। अब ये इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी है, मैं उस समय ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा इसे, बट ये बताने के लिए कि जब इस डायग्राम को हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि
जो आई करंट यहाँ से जा रहा है वो यहाँ पे ऐसे बढ़ जाता है I1 में, इधर I2 में, और यहाँ I3, कुछ भी नाम दे दिया हमने ऐसे ही, बट दर्शाना है कि वो करंट बढ़ जाता है। और क्या चीज कांस्टेंट रह जाती है, वो होती है इन एक्स और वाई पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, V इज कांस्टेंट। और यही चीज है हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 से लेकर 240 या मान लीजिए 50 वोल्ट्स तक एक कन्वेंशन है कि इतने वोल्टेज पे बिजली पूरे कंज्यूमर्स में, एंड यूजर्स में सप्लाई की जाती है हमारे देश में। तो इसको मेंटेन अगर करना है तो भाई यही कॉम्बिनेशन है, बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ ये चीज होल्ड करती है। अगर ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे डिफरेंट अपने अप्लायंसेस को, यूजेस को, तो भाई वो ये वाली वोल्टेज मेंटेन कर पाएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है जो कि काफी हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो वी विल गेट बैक टू इट। एंड बहुत रेयर है कि इन फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, एंड इसको डिराइव करके आप अगर मतलब इफ यू गाइस हैव अ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड देन यू कैन, बट उस दिन हम लोगों ने ये किया भी था वैसे कि V इज इक्वल टू आई आर, यही फॉर्मूला याद रखना है, इसी से सब कुछ निकल के आता है। अगर V यहाँ पे हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में कांस्टेंट था तो ये पूरी वैल्यू आपस में भी कांस्टेंट हो जाएगी, सही बात। तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। अब भाई तीन तीन यहाँ पे डिफरेंसेस हैं तो तीनों को हम लिखेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तभी ये बन पाएगा। लेकिन अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को एक साथ एक से रिप्लेस कर दें तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट। तो वही चीज इससे डिराइव की थी इस फॉर्मूले ने कि V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट लिखने के लिए इन्होंने यहाँ पे V जो हमारा कांस्टेंट टर्म था उसको अलग कर लिया, पहले I इधर लिख के V अपॉन आर इक्विवेलेंट कर दिया, ठीक है। बस ये सिंपल ऊपर नीचे आ गई चीजें। अब I1 था यहाँ पे, I2 था, I3 था, यही तीनों चीजें क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी हमारे कंप्लीट I से जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 I2 प्लस I3 इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। और या फिर सिंपली ये आया था, आर इक्विवेलेंट को अगर हम अलग करेंगे तो V अपॉन और इस I को अगर हम फिर से इस इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे तो देन वी विल गेट अ सर्टेन, एक सेकेंड, I को फिर हमने लिखा V बाई आर इक्वल्स टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3, एंड इन्हें हमने अगर कॉमन लेके हटा दिया सो 1 अपॉन आर ई क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। ऐसे ही ये इक्वेशन डिराइव हुई थी लेकिन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने थोड़ा फिगर आउट किया कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा जरूरत नहीं है हमें, तो इसे बस जानने के लिए जान लिया हमें, लेकिन इसे मैं याद करने को नहीं कहूंगा। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला इसको याद रखने में बोलूंगा, क्योंकि एकदम ही शुरुआती क्लास में जब मैंने मैथ्स की इंपॉर्टेंस समझाई थी सबको कि क्यों हमारे लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को कंडेंस करना हमें सिखा देता है। इस इक्वेशन में ये लिखा हुआ है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ 3 अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें बता रहा है कि ये चीज, इसको वोल्टेज कहते हैं, इसको करंट कहते हैं। इन्हीं दोनों के चीजों से मतलब इन्हीं दोनों के मतलब इन्हीं दोनों क्वांटिटीज के वजह से हम मेजर कर पाते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है पूरे सर्किट के अंदर। फिर हमने देखा कि ये दोनों रिलेटेड होते हैं, V एंड I। कैसे रिलेटेड होते हैं? जब उन्हें हम एक इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे तो एक कांस्टेंट R हमारे सामने आ जाता है जो इन दोनों के बीच के रिलेशन को जस्टिफाई करता है। तो भाई इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से 3 लेटर की इक्वेशन में आ गई, सो दैट इज समथिंग पावरफुल। V इज इक्वल टू आई आर, इसको बार बार कहूंगा, बस ये याद करके चलें, ओम्स लॉ कहते हैं इसे। और इससे आपके जितने भी क्वेश्चन इवन न्यूमेरिकल नहीं भी होंगे
सिंपल लॉजिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान रखेंगे, कहीं लिख लेंगे ना किसी इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन से डील करते समय, तो आपको काफी चीजें क्लियरली दिख जाएंगी। भाई ये अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, ये घट रहा है, कब होगा जब ये कांस्टेंट रहेगा। सिंपल। मूविंग ऑन, एक चीज हमने सीखी थी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो पहले भी पढ़ रहे थे कि जो यूसेज है हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का। उस समय विंटर्स चल रहे थे जब हमने स्टार्ट किया था अपना कोर्स, तो हम लोगों ने हीटिंग के बारे में काफी बात की थी। ब्लोअर्स हो गए, हीटर्स हो गए, इंडक्शंस हो गए जो खाना बनाते हैं, दे ऑल यूज सर्टेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, which is now, because we have come to a point where we can derive all these quantities in real time, we see that this is a byproduct, ये एक वेस्टेज है इलेक्ट्रिसिटी का, हीटिंग, लेकिन कुछ मायनों में हमारे लिए काम का भी साबित हो सकता है। तो उसको हमने H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाई वी इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से ही डिराइव होके बना था ये। तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इस इक्वेशन से एक डायरेक्ट इस इक्वेशन का भी रिलेशन है उसी क्वेश्चन से जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ थोड़े टाइम में, कि 220 से 240 वोल्ट्स क्यों आता है हमारे यहाँ, एंड उसी से रिलेटेड एक और चीज देखेंगे। तो इसे भी बस आपको देख लेना है बस, और इतना सा याद कर लेना है इस पूरे इक्वेशन से, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से, कि जिन्हें थोड़ी सी मैथ्स आती है, अभी स्मिता मैम की क्लास में जो लोग ध्यान दे रहे होंगे उन्हें ये समझ में आ गया होगा, या नहीं भी अगर देखा है आपने, कि किसी की चीज के ऊपर अगर ये स्क्वायर लिखा होता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब हम चीजों का स्क्वायर लिखते हैं, जैसे 2 नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं, क्यूब लिखते हैं, वो लिखते हैं, ये बहुत पावरफुल डिनोटेशन है मैथमेटिक्स के। ये आपको बताते हैं कि बहुत बड़ा नंबर लिखा है। इस वैल्यू को अगर आप बड़ा करेंगे तो 2 इंटू 2 हो गया है, विच इज 4। इस वैल्यू को लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है, टू 8। और इस वैल्यू को आप खोलेंगे तो ये 16 लिखा है। ऐसे ही जितनी भी बार मतलब जितना एक्सपोनेंट में नंबर जो लिखा होगा, किसी के ऊपर चढ़ा हुआ नंबर जो लिखा होगा, मतलब कि जो बेस नीचे वाला नंबर है वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे हमें बस यही समझना है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर ऐसा कोई डिनोटेशन है, मतलब कि वो कुछ बड़ा दर्शा रहा है या उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में भी यही चीज है कि हीट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन आई, एंड उसका स्क्वायर की जो वैल्यू है उतना हीट जनरेट होगी। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस में हीट अगर जनरेट हो रही है, मतलब उसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, या अगर किसी चीज में करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा तो हीट जनरेट होगी, वाइस वर्सा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चीज को मैं अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन रिलेट करके बताऊं, तो जो डिवाइसेस है जो हीट का आदान प्रदान करते हैं, जैसे आपके हीटर्स हो गए, इंडक्शंस हो गए, एंड ऐसे डिवाइसेस जो ठंड मतलब लाने का काम करते हैं, वो हीट को बेसिकली एक जगह से निकाल के दूसरी जगह फेंक रहे होते हैं, जैसे एसीज हो गए, फ्रिजेस हो गए। हम लोग को बताया जाता है कि बहुत ज्यादा लोड लेते हैं। वो क्यों होता है? इसी वजह से, क्योंकि वो करंट बहुत ज्यादा ड्रॉ कर रहे होते हैं वो चीजें। आपका सबसे ज्यादा घर का बिजली का बिल इन्हीं चीजों की वजह से आएगा, क्योंकि ये ज्यादा खपत कर रहे हैं आपकी बिजली की। सो दिस कैन बी directly related to our general understanding of electricity in the everyday life. Okay. इलेक्ट्रिक पावर, ये हमने सीखा था कि अब हम फाइनली कमर्शलाइजेशन पे आ गए किसी भी चीज का। अगर हम बेसिक्स, फंडामेंटल्स, फिर उसका एक्सटेंसिव स्टडी कर लेते हैं, फिर आदमी यही सीखता है कि भाई इस चीज को हम अच्छे से जान गए, अब भाई पैसा कमाया जाए इससे। तो गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना सीखा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना सीखा बाकी चीजों से, इलेक्ट्रिसिटी को बनाना सीखा, so as to say, they made a convention कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसी यूनिट जिसको हम इक्वेट कर सकते हैं, जैसे आप केजी यूनिट जो होती है, किलोग्राम, बहुत सारी सॉलिड चीजों की यूनिट केजी होती है। आप कुछ भी आटा लेने जा रहे हैं, दाल लेने जा रहे हैं, तो उसका केजी की यूनिट होती है। भाई पर केजी वो 100 रुपए का है,
या फिर 90 रुपए का है, कितने का है, तो 100 पर केजी ऐसा कुछ। तो बिजली को भी ऐसे क्वांटिफाई करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी को क्वांटिफाई करने के लिए एक यूनिट बनाई गई विच इज कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड उसको बोला गया किलोवाट। 1 किलोवाट को एक यूनिट कहा जाता है। अब इसका हम लोगों ने न्यूमेरिकल एक एग्जांपल देखा था कि होता कितना है। तो कहीं लिखा हुआ है 1 किलोवाट आवर, इसको कहेंगे हम 1 यूनिट। जब इतनी अमाउंट ऑफ बिजली जिसकी पावर इतनी है 1 आवर के लिए कंज्यूम हो रही होगी, तब वो 1 यूनिट बिजली के बराबर मानी जाएगी। जो हमारे मीटर्स लगे होते हैं घरों में वो यही कैलकुलेट करते हैं कि भाई इनके घर में इतना खिंच रहा है करंट, और उसको ये पता है कि वोल्टेज कांस्टेंट होती है, कितनी आ रही है उसमें फीड रहती है, या फिर वो लाइन से जो वोल्टेज आ रही है उससे मेजर करता रहता है, वो इसको मल्टीप्लाई करता रहता है। आप पावर का फॉर्मूला देख ही रहे हैं यहाँ पे कि V इंटू आई है, तो पावर इज इक्वल टू जो हमारे घर बिजली आती है 220 मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, और कितना करंट आपके सारे अप्लायंसेस मिलके खींच रहे हैं वो बहुत इजी है पता करना, क्योंकि सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो बस सारे करंट्स को ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट करंट निकल आएगा, तो वो यहाँ पे आई डाल देते हैं। तो उतनी यूनिट आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे करके वो आपका मंथली बिल जनरेट करते हैं। अब पर यूनिट कुछ चार्ज होता है उनका 5.5-6 रुपए। अच्छी सरकार है, अच्छे रिसोर्स मैनेजमेंट कर रही है, तो वो कम से कम रखेगी इस प्राइस को। न्यूक्लियर तरीकों से, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। जितना ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, जितना ज्यादा हम कंपनी से, प्राइवेट वेंचर से खरीद रहे होंगे बिजली, उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा ये दाम। This can be also a good question for prelims की what are the factors that influence the प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ नेशन। तो आज जितने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ उनको जरूर देखते हैं, लेकिन आप लोगों से भी मैं ये कहूंगा दिस कैन बी अ लिटिल होमवर्क फॉर यू गाइस, कि आप सब लोग 2 से 3 क्वेश्चंस अपने हिसाब से बना के लाएंगे जो हम लोग ने आज की इस डिस्कशन में नहीं इनकाउंटर किए होंगे। अपने मन में किसी के कुछ क्वेश्चन आता है विच इज गुड, जैसे सर हमेशा कहते हैं क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, इससे आपकी एप्टीट्यूड बनता है टुवर्ड्स दिस। तो you guys also try and frame questions on what is the use of electricity in our lives and how can we bring logic into it। तो 2 से 3 या एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, इट विल बी गुड। अगर नेक्स्ट क्लास में हमारे पास नेक्स्ट डिस्कशन में हमारे पास, दिस इज नॉट अ क्लास वी आर डिस्कसिंग इट, तो अगर इवन 10 न्यू क्वेश्चन होंगे फ्रॉम यू गाइस, आई विल बी वेरी हैप्पी। चलिए हमारी कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी जो अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है, उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यू गाइस जस्ट रिस्पॉन्ड इन द चैट कि अभी तक का जो डिस्कशन है वो सबको क्या कहते हैं बैठ रहा है दिमाग में, देखिए अभी तक जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जो फंडामेंटल्स देखे हैं, वो रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? आर यू गाइस फॉर्मिंग सम रिलेशन बिटवीन all of the information that we have studied? Quickly respond in the chat please. Okay Shubham, good. I can see a few questions. R is equal to R1 plus R2 plus R3 and ठीक है। अनिल क्वेश्चन इज ऑल्सो वैलिड कि उन्होंने लिखा है कि जो मैंने R इज इक्वल टू कैसे इक्वेट कर दिया था जल्दी से 1/R1 1/R2 1/R3 से, वो एक मैथमेटिकल डिस्टिंक्शन है जो हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, उतना जरूरी नहीं है। अगर स्मिता मैम की क्लास में ऐसा कुछ एनकाउंटर करते हैं आप, तो वो ये टाइप के आपको एडिशंस पढ़ा सकती हैं, लेकिन हमें वो जानना जरूरी नहीं था कि हाउ वी केम टू इट, बट वी ओनली हैव टू नो कि दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन डज एग्जिस्ट एंड उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या, एंड व्हाई आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। इस क्वेश्चन को शायद मैंने वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया था जब मैं अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था। अब देखिए क्विकली इसको बता देते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे जंप करेंगे। लेट मी सी तेरा ओके गाइस, तो आप लोगों को क्लियर है? बिल्कुल सही। बस ये क्वेश्चन मैं डील कर लेता हूँ कि व्हाई आर अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो
जैसे कि हमने बोला ना कि बिजली की जो वोल्टेज है, आप किसी भी अपने स्टेबलाइजर में कहीं पे भी, जहां आपके घरों में बड़े फ्रिज लगा है उसके ऊपर भी शायद स्टेबलाइजर लगा होगा, उस पे वोल्ट मीटर दिखता होगा कितनी वोल्ट आ रही है। यही 220 से लेकर 250 240 के बीच में ही होती है वोल्टेज। ये कन्वेंशन है जिसको डायरेक्टली आगे वाले क्वेश्चन में रिलेट करेंगे हम। ये कन्वेंशन है कि भाई इतनी ही बिजली इस लेवल के वोल्टेज की बिजली ट्रांसमिट होगी, क्योंकि जब कोई चीज कमर्शियली दी जा रही होती है सबको बराबर मिलनी चाहिए, राइट। सब, किसी को ज्यादा वोल्टेज की बिजली, किसी को कम वोल्टेज की, ऐसे तो मिल नहीं सकती। और जो अप्लायंसेस, जो उपकरण घरों के लिए बनते हैं, वो सबका एक ही रेटिंग होती है, ताकि वो पूरे एक कंट्री के सारे घरों में यूज हो पाए। उसको यूज करने के लिए कोई घर में बिजली का चेंज ना करना पड़े किसी को। फॉर द ईज ऑफ एक्सेस, फॉर द ईज ऑफ यूज, दिस कन्वेंशन इज मेड। एंड जब घर में वोल्टेज कांस्टेंट आ रही है, मान लीजिए, ठीक है, अगर इसको काउंटर एक्टिवली सोच के देखते हैं कि अगर पैरेलल कनेक्शन नहीं होता, सीरीज कनेक्शन होता। मान लीजिए यहाँ पे 220 वोल्ट्स का सोर्स है कुछ ऐसे, यहाँ से सम सोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग 220 वोल्ट्स, वो आ रहा है। फिर ये हमारे घर में एंटर हुआ। हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेज हैं, मैं सबको कुछ कुछ नाम दे दूंगा जो मुझे समझ में आता है, ठीक है। और फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं। स्विच नहीं बनाया है, वैसे स्विच हर जगह जरूरी है, बट अभी हम लोग जस्ट पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये हो गया मान लीजिए हमारा टीवी, ये हो गया एसी, और ये हो गया फ्रिज हो गया। बड़ी चीजें ले ले रहा हूँ, छोटी चीजों को अपने आप समझ जाएंगे हम। तो अगर 220 वोल्ट यहाँ से आया, तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ये देखा था, बैटरीज में भी देखा था ये, कि अगर हम उन्हें सीरीज में जोड़ते हैं बैटरीज को, तो उनकी वोल्टेज बढ़ती जाती है। अगर 1 वोल्ट की बैटरी थी, तो ये वोल्टेज बढ़ के 3 वोल्ट की हो जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए अगर एक 3 वोल्ट की बैटरी है, उसमें सब जुड़ी हुई चीजें, अगर उसको हम डिसइंटीग्रेट करें, तोड़ने लगे, बैटरीज हटाने लगे उसमें से, मान लीजिए ये बैटरी 3 वोल्ट की थी, अगर हमने उसमें से एक बैटरी हटा ली, तो ये 1 वोल्ट की एडिशन सिर्फ 2 वोल्ट की रह गई, मतलब उसकी वोल्टेज घट गई पहले से। तो रेजिस्टेंसेस भी यही सीरीज कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। अगर 220 वोल्ट्स की बैटरी थी और उससे हमने एक बैटरी के वर्थ की एनर्जी खींच ली, यहाँ पे मान लीजिए 50 वोल्टेज ड्रॉप कर लिया, टीवी ने 50 वोल्ट खींच लिया इससे, वी आई खींचा पूरा। कितना आई था वो हम नहीं उस पे जा रहे हैं, जस्ट से 50 कुछ एक छोटी सी यूनिट खींच ली, तो ये वोल्टेज की वैल्यू अब तो इस पॉइंट पे डिक्रीज हो गई ना, 220 माइनस 50, ये 170 रह गई, 170 रह गई। अब ये एसी जो है ये तो काम ही नहीं करेगा भाई, ये डिजाइन किया गया है 220 से 240 वोल्ट के बीच में काम करने के लिए। अब इस तक इतनी वोल्टेज पहुंच ही नहीं रही है, तो ये एसी तो चलेगा ही नहीं। और ये एसी नहीं चलेगा, ये पूरा 170 को ड्रॉ कर लेगा और ना ही चलेगा, तो ये एनर्जी यहीं खत्म हो जाएगी। फिर सर्किट जो है इसके आगे कुछ काम ही नहीं करेगा, डेड, फ्रिज में कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, डेड रहेगी। सो दैट इज व्हाई द कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स इज मेड पैरेलल, सो दैट, मान लीजिए ये 220 वोल्ट्स जनरेट कर रहा है, ये बैटरी या जो भी मेन सप्लाई आपकी आती है, एंड देन अ लॉट ऑफ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड, वही अटेम्प्ट लेते हैं पैरेलल में, और फिर ये सब जुड़ा हुआ है, ये कनेक्टेड है। तो यहां से 220 वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी आई, some current I is drawn by the TV, some is drawn by the AC, some is drawn by the fridge. अब ये 220 वोल्ट सबको बराबर मिल पा रहा है, ठीक है। और कुछ कुछ अमाउंट का करंट I1 I2 और I3 ये निकाल ले रहे हैं इसमें से, बस सबको बराबर लेवल की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और वो कितना कंजम्पशन उसका करना चाहते हैं वो उनकी कैपेसिटी पे डिपेंडेड है। इस केस में सबसे ज्यादा एसी लेगा, उसके बाद फ्रिज उससे कम करंट लेगा, टीवी सबसे कम लेगा। लेकिन सबको अपने लेवल की जो बिजली होनी चाहिए, जो उसकी वोल्टेज है, वो कांस्टेंट मिलती है, 220 से लेकर यहाँ 0 हो जाएगी। ये सारे डिवाइसेस फिर आराम से हमारे चल रहे होंगे। दैट इज व्हाई the combination of all the appliances in a house या in any infrastructure is made parallel, so that
for the sake of universal approach. I hope Jigyasa your question is clear. Okay, fine. Now we have come to a question which deals directly with the commercial unit of electricity. An electric lamp of 100 watt is used for 10 hours per day. The unit of energy consumed in 1 day by the lamp is. बहुत simple question है ये. मतलब this can be the height of numerical question that you will ever get prelims में तो. और इसको हम अपने जो यूनिट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ये एक बस वैल्यू याद रखने हमने बोला था 1 किलोवाट आवर. अगर इसको हम बोलना सीख पाएंगे तो हम इसको नंबर में लिखना भी सीख पाएंगे. 1 किलोवाट आवर क्या हो गया? 1 वॉट तो यूनिट हम जान गए थे कि पावर की यूनिट वॉट में होती है, इसको वॉट कहते हैं. और किलो कहीं भी लिखा होता है हमारे मैथमेटिकल कन्वेंशन में तो उसको हम 1000 समझते हैं. किलो इज शॉर्ट फॉर 1000. सो 1000 वॉट इतना हमने डिड्यूस कर लिया. एंड आवर लिखा है मतलब 1 आवर. अगर कोई चीज इतने टाइम के लिए चलेगी तो ये 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा. 1000 वॉट का अप्लायंस 1 आवर चले या एक जीरो का आदान प्रदान करके देखते हैं. 100 वॉट्स का 10 आवर के लिए चले या 10 वॉट का 100 आवर के लिए चले. सिंपल जीरोस को हम बस शिफ्ट कर रहे हैं, इतने आराम से हम डिड्यूस कर पाएंगे. अब आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन 1 2 3 इन तीनों में से कौन सा हमारे इस केस में लग पाएगा? जल्दी, क्विक. ऑब्जर्वेशन वाली चीज है बस, इसमें कुछ सोचना भी नहीं है. हाँ, करेक्टली जो मैंने ऑप्शंस दिए उसमें से सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि भाई हमारे क्वेश्चन में पूछा गया 100 वॉट का अप्लायंस है, यहाँ हमने 100 वॉट की पावर लिख दी. यूज फॉर 10 आवर्स अ डे, 10 आवर यहाँ लिख दिया. तो ये सारा कुछ 1 यूनिट ही था, तो आंसर हमारा 1 यूनिट होना चाहिए. सो यस, यू गाइज आर राइट. द सेकंड ऑप्शन दैट आई हैव गिवन एंड इन द क्वेश्चन इट इज द ए ऑप्शन. सो देखा कितना सिंपल था. अगर थोड़ी सी अगर हम मैथ्स रिमेम्बर कर सकते हैं तो हम टेक्निकल चीजों को विद कन्विक्शन एंड विद रीजनिंग डील कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा. आई गेस यू गाइज आर नाउ कॉन्फिडेंट अबाउट इट. आप कर लेंगे. मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये आ गया सीधा सीधा क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि 220 क्यों रखा जाता है. The main power supply in India is at 220 volts, whereas in the US it is at 110 volts. कि कभी अगर किसी के घर कोई रिलेटिव आया होगा बाहर किसी कंट्री से, यूएस से बेसिकली, तो अगर उन्होंने कोई अपना अप्लायंस डायरेक्टली लगा, जैसे मेरे घर हुआ था. मेरी एक बार मौसी आई थी और उनका कुछ हेयर ड्रायर या कुछ ऐसा अप्लायंस था जिसको उन्हें चाहिए था, यूज करना था किसी चीज के लिए. तो जैसे उन्हें लगाया वो फट से बोला और खराब हो गया. तो उस समय मैं बहुत छोटा था, मुझे ये चीजें पता नहीं थी. फिर देन माय डैड केम बैक, उन्होंने कहा कि कन्वर्टर लगाना था, स्टेबलाइजर में लगा के करती है ऑल ऑफ दैट. तो ये कन्वेंशन है यूएस गवर्नमेंट या यूएसए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो करता है वो 110 वोल्ट्स पे यूज होता है. इंडिया इज यूजिंग 220 वोल्ट्स. तो अभी हम इससे 2 क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या होगा. Which among the following statements in this regard is correct? 110 volts is safer but more expensive to maintain. 110 volt is safer and cheaper to maintain. 110 volt leads to power loss. या 110 volt works better at higher latitudes. तो अगर हम अपने फॉर्मूले पे वापस जाएं, V is equal to IR. देखिए आ गया ये, इसी बेसिक चीज का यूज यहाँ पे आ गया हमारे पास. वोल्टेज की बात हुई थी. वोल्टेज हम लोगों ने क्या सीखा था? सीधे रिलेटेड करंट से कैसे है या रेजिस्टेंस से कैसे है, उसमें समझ में आ गया. अब यहाँ पे जो लिखा है एक्सपेंसिव टू मेंटेन, चीपर टू मेंटेन, पावर लॉस और ऑल्टीट्यूड. चलिए ये तो हमारे अब आप इसको तो एलिमिनेट करना सीख गए होंगे कि कुछ कोई ऑप्शन जो होते हैं वो सिर्फ हमें हल्का सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं. सो ऑल्टीट्यूड से तो हम समझ गए कि कोई फर्क पड़ता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को बस एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वो कहीं पे भी हो उसे हाइट जो है इफेक्ट करती नहीं है. तो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड.
पावर लॉस चीपर एंड एक्सपेंसिव, ये डायरेक्टली अब हमारे यूज के है कि क्योंकि हमने कमर्शियल भी यूज पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड उसमें कैसे कैलकुलेट होता है पैसा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, वो पता चला। एंड लॉस भी जाना हमने। पावर लॉस किसे कहा था? वही हीट से जो हमने ये फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूले से हमको पता चल गया कि अगर हीट जनरेशन हो रहा है किसी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो पावर लॉस है। और अगर हीट को हम यूज कर रहे हैं अपने यूज के लिए, तब वो हमारे लिए बाय प्रोडक्ट नहीं है बल्कि हमारे लिए इफेक्टिव है। तो हमारे केस में ये पावर लॉस हीट ही है। और हीट क्यों लूज हो सकती है या फिर बचाई जा सकती है? करंट पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई लाइन है जिसमें करंट ज्यादा है, मान लीजिए, उसको और बड़ा करके लिखते हैं, किसी सिस्टम में जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वहां पे करंट अगर ज्यादा है, दिस थिंग इज मोर, तो आप सीधे सीधे बताइए ये जो V लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके साथ क्या घटित होगा अगर ये चीज कांस्टेंट है? इसको हम लिख दे रहे हैं कांस्टेंट। ये नहीं हिल रही भाई, ये पत्थर की तरह रिजिड है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो अगर I बढ़ रहा है तो क्विकली गाइस रिस्पॉन्ड इन द चैट कि V के साथ क्या होगा। बहुत सही, V विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि हमने देखा लिनियरली रिलेटेड है दोनों। V एंड I आर लिनियर। ये रिलेशन जो था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उससे यही पता चलता है ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा। कैसे घटेगा बढ़ेगा ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। पावर जो जनरेशन हो रही है, अगर वहां से हम बढ़ा दें, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखें किसी कंडक्टर की, तो दोनों चीज बढ़ जाएंगी। जो जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बैटरी है उसका वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया तो बढ़ गया, कम हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमने ये देखा कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में ये आई ज्यादा है तो हीट जनरेशन जो होगा उसमें ज्यादा होगा। हीट जनरेशन ज्यादा होगा तो आप, अगर मैं यहाँ दो वैल्यूज लिखता हूँ, 220, 110, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं हम, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं आर को। अगर वोल्टेज 220 है और वोल्टेज 110 है, तो इसमें से किसमें करंट ज्यादा होगा, किसमें करंट कम होगा? गाइस रिस्पॉन्ड। ओके वेरी गुड। हाई इन 220 एंड 110 में लो रहेगा। तो सीधी सी बात हो गई कि इसमें पावर लॉस तो नहीं होने वाला। हमारे 110 वाले क्या कहते हैं, इसमें पावर लॉस नहीं होगा। तो 110 डज नॉट लीड टू पावर लॉस। कंपैरेटिवली पावर लॉस होगा, लेकिन 220 के कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में 110 में कम होगा। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो एलिमिनेटेड। 100 volt is safer and cheaper to maintain. 110 volt is safer but more expensive to maintain. अब हमें ये समझ में आया कि 110 वोल्ट सेफर है। और सेफर क्यों है? क्योंकि इसमें करंट कम है। अभी तक यही चीज हमें पता चली है कि करंट इज लेस एज कंपेयर टू 220 वोल्ट। तो इट इज सेफर। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, चीप है या एक्सपेंसिव है। अब ये हम लोग इकोनॉमी इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हमें ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी चीज को अगर ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, अगर हम दो गाड़ी भेज रहे हैं या दो बार सामान आगे पीछे कर रहे हैं, एक कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड है, उसको यहाँ से दूसरे शहर पहुंचाना है, एक ही गाड़ी में ठूस के नहीं भेज रहे, हम जो है छोटी छोटी दो गाड़ियों में बांट के भेज रहे हैं। तो सेफ तो वो हो गया, क्योंकि भाई स्पेस रहेगा सामानों में, टूटने की चांसेस कम है, पावर लॉस नहीं होने वाला कोई। लेकिन एक्सपेंस बढ़ गया, दो गाड़ियों को चलना है, उसमें उतना ट्रक, मतलब एक्सपेंस बढ़ेगा फ्यूल का, इन सब का। तो यस, यू गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये इट इज सेफर बट मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन। एक इतना आराम से हम लोगों ने बस एक दो इक्वेशंस को यूज करके इतनी सारी इंफॉर्मेशन डिराइव कर ली। सो दैट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स दैट आई ऑलवेज ट्राई टू एडवोकेट। अब इसके पीछे थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूएस 110 क्यों यूज करती है और ब्रिटिश 220 क्यों, मतलब इंडियंस 220 क्यों यूज करते हैं? अरे मैंने गिव अवे कर दिया जो मैं बताने वाला था। तो भाई सभी लोगों को यूरोप ने कॉलोनाइज करके रखा था। इवन अमेरिका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस क्वाइट लेट। और इंडिया तो बहुत ज्यादा ही झेला ब्रिटिशर्स का रूल।
तो इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ ब्रिटिशर्स का ही बनाया हुआ है। तो हम लोग स्टिक कर गए 220 वोल्ट से। ये यूरोप की बनाई हुई टेक्नोलॉजी थी कि इलेक्ट्रिसिटी को 220 वोल्ट्स पे ट्रांसमिट किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। एंड यूएस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के बाद, टू ब्रेक फ्री ऑफ दी क्या कहते हैं, द शैकल्स, टू ब्रेक फ्री ऑफ दी रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहा। उन्होंने थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा उन्होंने पता किया कि हम थोड़े और सेफर तरीके से इसको बना सकते हैं। उनके खराब मेथड्स को इन्होंने थोड़ा अच्छा करने की, दे स्टक टू 110 वोल्ट्स। थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट हम ये जानते हैं कि दे हैव नो शॉर्ट सप्लाई ऑफ फंड्स, उनके पास फंड्स काफी हैं। सो दे आर गोइंग विद दी बेटर एंड मोर इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस यही बात है। और इंडिया, भाई इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर पाए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं इसका रीजन क्या है। सैड बट ट्रू। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन क्या आ गया कि टू पीसेज ऑफ कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। पढ़ते पढ़ते ही हम लोग को शायद इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या लिखनी है। लेंथ और मटेरियल की बात हो रही है, तो कुछ रेजिस्टेंस वाले में हमने पढ़ा था, ये रो एल अपॉन ए, ये मटेरियल को डिफाइन कर रहा होता है, क्योंकि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। और ये लेंथ वगैरह हो गई, लेंथ और एरिया हो गया, तो इसको लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम रिलेट कर पाए। टू पीसेस ऑफ कंडक्टर सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सेल। ठीक है भाई, अगर बनाना सीख गए हम ये, तो इनको कुछ बोल देते हैं, ये सेल के साथ कनेक्टेड है, मटेरियल हो गया R1 R2। ठीक है, one of the two pieces has cross sectional area double to that of other. Which of the following statements is correct in this regard? तो इसमें क्या बोल रहा है कि दो कंडक्टर्स हैं, तो R1 इसको लिख लेते हैं L1 A1, R2 इज इक्वल टू रो 2 L2 और A2। इसको हटा देते हैं, ये हमारे कंपनी है इधर। So this is suggesting that one of the two pieces has cross sectional area double to that of the other। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें मैथ्स को यूज करते हुए कि किसी एक को मान लेते हैं भाई ये थोड़ा बड़ा लिखा गया है, तो इसी को लिख देते हैं कि 2 ऑफ A2 कर देते हैं इसे। A2 छोटा है और ये बड़ा है। Which of the following statements is correct in this regard? The thicker one will allow stronger current to pass through it. The thinner one would allow stronger current to pass through it. Same amount of electric current would pass through both pieces. More heat in thicker one. Same amount of electric current would pass through both the pieces, producing more heat in the thinner one. अब ये गुड क्वेश्चन है, काफी सही है, सीधा सीधा इस इक्वेशन को तोड़ने वाला क्वेश्चन है। कुछ चीजों को हम एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले अपने सामने, कि थिनर वन वुड अलाउ स्ट्रॉन्गर करंट टू पास थ्रू इट। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा ना, पतली अगर रोड होगी तो उसपे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास नहीं कर सकते। बट ऑन द सेम हैंड, अगर इफ द रोड इज बिगर देन इट वुड अलाउ साइमल्टेनियस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या क्या कहते हैं, whatever vehicles that are being passed through this road, वो ज्यादा पास हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम रहेगी। तो ये फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। अरे वाह, इतना सही आंसर ये आ गया। थिकर विल अलाउ स्ट्रॉन्गर करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, लेकिन ये बताया जाए कि अगर ज्यादा करंट पास हो रहा होगा तो हीट भी ज्यादा बनेगी, क्योंकि ये भाई ये वाला चीज भी आ जाती है कि आई अगर ज्यादा पास हो रहा है तो जो स्क्वायर में लिखा हुआ है वो चीज उसे थोड़ा परेशान कर सकती है। भाई ज्यादा करंट पास हो रहा है तो हीट भी ज्यादा बनेगी। तो अगर हीट भी ज्यादा होगी तो ऐसा तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, या तो सेम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है और हीट के बारे में बात हो रही है, या क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कम ज्यादा पास हो रहा है, हीट की बात नहीं हो रही है। तो ये घुमाने वाला थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि इसको कैसे देखना है हमें। क्या किया जाए भाई, बताइए।
लॉजिक लगाया जाए भाई, कुछ लॉजिक लगाया जाए इधर। अब सिंपल सी बात है, अब हमारा ये डायग्राम हम बना देते हैं यहाँ पे। इसमें हमने ये सीखा था कि जो करंट होगा वो तो एक ही पास करेगा, आई आई ही पास करेगा पूरे इसमें से। करंट के कम ज्यादा होने की कोई तो बात ही नहीं है, आई ही पास करेगा, खाली यहाँ पे वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज 1 वोल्टेज 2 ड्रॉप होगी। तो सेम करंट पास होने वाले ही ऑप्शन सही है, ज्यादा करंट पास और कम करंट पास वाली चीजें एलिमिनेट हो गई। ऐसे रिलेट कर रहे हैं इसे हम। अगर करंट वाली क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गर और लेस स्ट्रॉन्ग करंट वाली चीज अगर खत्म करते हैं, तो अब ये देखते हैं कि हीट जनरेशन जो होगा दोनों में से वो किसमें ज्यादा होगा। अगर ये चीज कांस्टेंट हो गई, इफ दिस थिंग इज कांस्टेंट, तो अब हीट जो होगी सिर्फ डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस पे, ये जो लिखा हुआ है। और रेजिस्टेंस इन दोनों की हम देख रहे हैं, इन दोनों में से किसमें ज्यादा होगी भाई। अब ये देखा था हमने कि अगर ये चीज बढ़ गई है तो ये घट जाती है। ये A2 लिखा हुआ है, ये 2A2 लिखा है, दिस इज ऑब्वियसली बिगर देन दैट। इसमें रेजिस्टेंस कम है, तो मतलब जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें हीट कम बनेगी, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें रेजिस्टेंस हीट ज्यादा बनेगी। तो इजी सी बात है, जो थिकर वन है इट विल बी प्रोड्यूसिंग लेस हीट। तो आप देखते हैं दोनों ऑप्शंस में से क्या आता है, सेम पास थ्रू बोथ पीस बट मोर हीट इन द थिकर वन, मोर हीट इन द थिनर वन। तो हमारे पास आंसर आ गया सामने, हमने इसको डिड्यूस कर लिया है, दिस इज आवर आंसर। थिन वाले वायर में ज्यादा हीट बनेगी क्योंकि ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा उसे। तो ऐसे लॉजिकली ऐसे एलिमिनेट करना सीखना है क्वेश्चंस को। अब इसमें जैसे हम लोग टाइम ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन अगर इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग दिमाग में रखेंगे अपने हर मतलब किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज को अगर इन फॉर्मूलाज के थ्रू थोड़ा सा फ्रेम करना चाहेंगे, तो हमें ये प्रोसेस जल्दी आने लगेगी दिमाग में कि कैसे किसी चीज को हमें डिसाइड करना है कि वो ज्यादा करंट फ्लो करने देगी या नहीं, ज्यादा हीट बनाएगी कि नहीं। तो देखा आपने, सिस्टमैटिकली हमने तीनों इक्वेशंस यूज कर ली, जबकि कहीं लिखा नहीं था यहाँ पे इक्वेशंस यूज करने हैं कि नहीं, बट ये हमारे सीक्रेट हथियार हैं, यही दो तीन इक्वेशंस। देन लेट अस सी, लुक एट अनदर क्वेश्चन। A wire of resistance is bent in the form of circle. What is the effective resistance between diametrically opposite points? ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक आएगा इधर, इसको मैं स्किप करना चाहूंगा, ये मैंने ऐसे डाल दिया है। बट इस क्वेश्चन को आई वुड लाइक यू गाइज राइट इट डाउन। थोड़ा टाइम देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको फटाक से लिख लीजिए एंड देन गिव मी अ थम्स अप इन दी चैट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर कोई इसे ट्राई कर सकता है, आज की जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं अगर उनको यूज करके कोई इसे हिट करना चाहे तो प्लीज डू इट। आई होप अगर आपने लिखा नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा, एंड रिकॉर्ड तो हो ही रही है वीडियो। विल मूव फॉरवर्ड। ये देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस ट्रैवलिंग एट स्पीड्स ऑफ 100 किलोमीटर पर सेकंड कैन सिवियरली हार्म लिविंग बीइंग्स इफ दे रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ। व्हाट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए आईएएस प्रीलिम्स में आया भी हुआ है, काफी मतलब बेसिक चीज पूछते हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड चीज। कोई चीज अगर हमें हार्म कर रही है, कोई चीज हमें फायदा दे रही है, तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। डिटेल्स में नहीं घुस रहा है, बट दे डेफिनेटली वांट अस टू नो व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल विच इज आइदर सेविंग अस और हार्मिंग अस। डिड्यूस करते हैं कुछ कि Earth's magnetic field diverts them towards its poles. Ozone layer around Earth reflects them back to outer space. Yeah, moisture in the upper layers of atmosphere prevents them from reaching the surface of the Earth. None of the statements above is correct. What do you guys think? इसका क्या होना चाहिए आंसर?
ओके, आई कैन सी कोई आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है जब आप केमिस्ट्री थोड़ा और पढ़ेंगे, जब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे आप, जो ओके, विवेक हैज एन आंसर, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट्स देम टुवर्ड्स इट्स पोल्स, वेरी वेल। एंड क्या किसी को पता है ओजोन क्या करती है? ओजोन लेयर भी हमें बचा रही होती है सर्टेन हार्म से। ओजोन इज ozone is saving us from the harmful radiations that travel from the sun towards us, या पूरे, या the ultraviolet स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, उसमें जो वॉयलेट से भी ऊपर वाले हाई फ्रीक्वेंसी के कलर्स होते हैं, यूवी रेडिएशन को ट्रैप करता है वो, बिल्कुल। काफी चीजें जो इस आंसर को क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो इस पे हम वापस आएंगे, इसको मैं खुद नोट कर रहा हूँ, जब मैं आप लोगों की केमिस्ट्री क्लासेस को थोड़ा देखूंगा कि अगर ये लेवल पढ़ चुके हैं हम लोग, तब इसको और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। बट दिस इज अ गुड वे टू थिंक कि एक ही अंडरलाइंग प्रिंसिपल को कितने ज्यादा चीजों से रिलेट किया जा सकता है। As Oja sir is always trying to encourage us to do this, this can be a good activity. Magnetic field, uh, ये टॉपिक काश मैं पढ़ा पाता आप लोग, मैग्नेटिज्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैग्नेटिज्म भी एक बहुत बहुत पावरफुल चीज है, लिटरली एक मैजिकल पावर की तरह काम करता है वो, बहुत चीजों से हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे अर्थ को बचा रही हैं, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू आवर मदर नेचर या हुएवर क्रिएटेड आवर अर्थ इन सच अ गुड गोल्डी लॉक जोन, जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं। बट यस, द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कुड बी, अगर सिंगल चॉइस का क्वेश्चन आएगा तो दिस कैन बी द बेस्ट आंसर, ये वाला। बाकी नहीं तो अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो गए तो देन ओजोन विल आल्सो बी एन ऑप्शन, एंड मॉइस्चर ट्रैप नहीं करता है क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, तो वो पास कर जाते हैं डायरेक्टली, एंड ये तो हो ही नहीं सकता। तो मल्टीपल चॉइस में दीज टू, और अगर सिंगल चॉइस है तो दिस इज द मोस्ट डेफिनेट आंसर फॉर दिस। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जो हमारी कार बैटरीज होती हैं, वो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर आप लोग जानते हो, पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड इन कार्स, क्या उन्हें कुछ पता है कि क्या हो सकता है इसका आंसर? Okay, I can see the time is ticking away, so I won't let you guys decide this. I will quickly go through it because this will be the last question that we are dealing with this in this class. And in the next class, आप लोग एक क्वेश्चन जरूर फॉर्म कर रहे हैं, and मैं आपके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करूंगा। So let us quickly get into this. एक चीज है बहुत कॉमन है, 12 वोल्ट्स, भाई सभी ने सुना होगा 12 वोल्ट्स की ही बैटरीज होती हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, जो हमारे घर, इवन घर की जो इन्वर्टर बैटरीज होती हैं। लेड एसिड बैटरी एक कॉन्सेप्ट है, लिथियम आयन बैटरी सुना होगा आपने, और लेड एसिड बैटरी सुना होगा, ये काफी एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी अच्छे टॉप वो है, नाम है या केमिकल कॉम्पोजिशंस है। और लिथियम आयन, ये लिथियम आयन जो बैटरीज हैं ये आजकल ज्यादा चलन में है, जो हमारे फोन्स में बैटरीज होती हैं, छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बैटरीज होती हैं, सारी लिथियम आयन होती हैं। इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उतनी ही ये कॉस्टली भी होती हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये छोटे डिवाइसेस में यूज हो पा रही है, इसलिए इनका कॉस्ट के साथ रिलेशन ठीक बैठ रहा है। बहुत बड़े अमाउंट्स बनाने लगेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, जैसे टेस्ला कार्स जो है वो लिथियम आयन बैटरीज यूज करती हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ प्लस उनके कॉस्ट जाएंगी अगर हम उन्हें खरीदना चाहेंगे। तो लेड एसिड बैटरी uses liquid chemicals, and लेड आप समझ पा रहे हैं कि ये इसका एक एक्टिव कंपोनेंट है लेड, एंड एसिड जिसमें वो सब्स्टिट्यूटेड रहता है, जिससे वो फ्री आयंस उसको मिलते हैं एनर्जी को यूज करने के लिए। सो इट इज नॉट दैट एफिशिएंट, बट इट इज आल्सो चीपर टू प्रोड्यूस, एंड पर केजी या पर किलोवाट कॉस्ट जो है उसकी कम आती है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें, एंड ज्यादा रिसाइक्लेबल भी होती है। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे टॉपिक्स, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे यहाँ सही हो सकते हैं। सो द फर्स्ट इज वोल्टेज इज यूजुअली 12 वोल्ट, ये सही है।
Electrolyte used in is the hydrochloric acid. Electrodes used are lead and copper. Capacity is expressed in ampere hour. तो ये तो भाई सीधा सीधा हो गया. Capacity एम्पियर आर ए एच. आप लोग फोन्स में देख रहे होंगे कि 5000 मिली एमएएच की बैटरी है, पावर बैंक्स में 10,000 20,000 एमएएच है. तो वो मिली एम्पियर आर होता है, बट ये कार बैटरी है, ज्यादा एनर्जी यूज करी तो मिली हटा के सीधे एम्पियर पे आते हैं. तो कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आर. एंड तो 1 और 4 तो सही हो गए, और हमारे जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं उसके हिसाब से द डी आंसर इज करेक्ट. Well then, this is the wrap up for today's class. I hope you guys were able to uh, permanently stamp all the concepts that we have learned till date. And जो हम लोग ने अभी पिछले क्वेश्चन में इतना ज्यादा रिलेट करके देखा तीनों डिफरेंट इक्वेशंस को, तीनों डिफरेंट रिलेशंस को बिटवीन वी एंड आई, हीट, रेजिस्टेंस, उनसे कैसे हमने इजीली एक ऐसा घुमाने वाला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी डील कर लिया जो कि शायद अगर हम याद करके जाएं तो गलत भी कर सकते हैं, बट अगर हमने उनको लॉजिकली डील किया तो कितने आराम से हमारे समझ में आ गए. So I hope today's class was good. Yes, thank you so much for your patience and we will meet very soon and that is tomorrow. तो आप लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा. So thank you guys, thank you so much.